Great. Okay, Assalamu alaikum to all the student and a very warm welcome to you all. Um, Rida, now it's okay. Is my voice okay? या और loudly बात करूं तो आपको आवाज आएगी? Is it okay now? Rida Rahim, अभी okay है? चलें, we should start the lecture now. अच्छा, this is our English literature lecture. ठीक है? Actually, this is also our reinforcement lecture. Thank you, Aisha. Okay, thank you so much. And I'm your English teacher, Sitra. We are having today a reinforcement of lecture number 10. ठीक है, as we have done a reinforcement of lesson number 2 and 3 which are coming in your MT number 1 of literature. ठीक है, वो हम आपको already कर चुके हैं in the on last Monday. ठीक है, now we are having reinforcement of lecture number lesson number 10 Betsy Trotwood, and this is actually lecture number 10 of literature. ठीक है, we are having language and literature series of lecture numbers different. ठीक है, lecture लेसन जो है वो हमारे लिटरेचर के अलग हैं लेसन सीरीज लेक्चर सीरीज, और लैंग्वेज के लेक्चर नंबर्स हमारे डिफरेंट हैं. ठीक है, तो डू नॉट कंबाइन देम. अच्छा अच्छा, इसी तरह वी विल बी हैविंग असाइनमेंट नंबर विल बी डिफरेंट. ठीक है, बिकॉज विद द रीइंफोर्समेंट ऑफ लेक्चर्स यू विल नॉट बी हैविंग असाइनमेंट्स. ठीक है, जैसे लेक्चर नंबर 10 है तो आपको लेक्चर नंबर 10 रिलेटेड टू बेटसी ट्रॉटवुड आज कोई असाइनमेंट नहीं जा रहा है, तो आपके लेक्चर नंबर्स के साथ साथ असाइनमेंट नंबर्स भी डिफरेंट हो जाएंगे. ठीक है, बी केयरफुल अबाउट दैट. इसके लिए ये मत सोचिएगा कि अब मैं लेक्चर 8 लेक्चर्स के असाइनमेंट दे चुकी हूँ तो रीइंफोर्समेंट के बाद अब मैं आपको लेक्चर नंबर 11 का जो है वो असाइनमेंट नंबर 9 दूंगी. ठीक है, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, इसमें कोई वो प्रॉब्लम नहीं है. लेक्चर के अकॉर्डिंग आपके असाइनमेंट्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं. नाउ टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी हैविंग ओवरव्यू ऑफ लेसन नंबर 3 सो दैट वी कैन कनेक्ट लेसन नंबर 3 विद लेसन नंबर 4. ओके, जब भी हम किसी भी लेक्चर का ओवरव्यू या न्यू लेसन स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली वी कनेक्ट विद द न्यू लेसन टू द प्रीवियस लेसन. ठीक है, हम प्रीवियस लेसन को न्यू लेसन से कनेक्ट करने के लिए, उसको आपस में ज्वाइन करने के लिए एक ओवरव्यू में रखती हूँ. ठीक है, सो दैट योर स्टोरी शुड बी कंटिन्यू इन द कंटिन्यूएशन. Now we will be having overview of lesson number 3. First of all, the first chapter of lesson number 3 is Emily hears about Steerforth when David goes with his mate Pegotty to Yarmouth to spend some time after the death of Clara. Pegotty decided to take David with her to Yarmouth so that his memories and his sadness should be faded. ठीक है, कुछ थोड़ा सा उसको जो माइंड है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए और उसका जो मूड है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए. एंड प्लस ही इज सैड नाउ बिकॉज ऑफ हिज मदर्स डेथ, सो मिस्टर एंड मिसेस मर्डरस्टोन विल नॉट बी ट्रीटेड हिम in a good way. तो वो उसको बहुत badly treat करेंगे and he is also nervous and he is also not feeling well. He is weak with the sadness. That's why Pegotty decided to take him to Yarmouth, and she took permission with Mr. and Miss Murdstone both. ठीक है, Pegotty was also dismissed and dismiss होने के बाद उसने तय किया कि I will go to Yarmouth first and then I will take David also with me. David talked about Steerforth when David went over there. So everybody sitting in the sitting room and everybody was asking to David ki what had happened to you in the London at Salem House. How did you learn over there? Why did you left the school? And what did you do over there? So David told everything, what he has faced, what he has done over there in the Salem house. So everybody was listening to David very keenly and very interestingly, and they were very quietly listening to David. Emily was also sitting over there, and she liked Steerforth. Whatever David talked about the Steerforth, Emily was listening very carefully with a keen interest, and she was very interested to meet Steerforth. Okay, she liked Steerforth with the talking style of David. जैसे जैसे वो बोलता जाता उसकी बातों से वो बहुत ज़्यादा impress हो गई, and Emily started liking Steerforth. ठीक है,
as David said that he's a very handsome boy, he helped me a lot, he's a very noble person, and with a very respectable family he belongs to. So Emily was getting very impressed, क्योंकि उसके ऊपर एक अच्छा impression आने लगा उसका स्टेफोर्ड का. Then after some days, when David goes back to his own unfriendly house, ठीक है, वो अपने अनकंफर्टेबल अनफ्रेंडली हाउस में वापस जाता है आफ्टर विजिटिंग यारमाउथ, तो वहाँ पर उसको अगेन ही वॉज फेसिंग सम मोर डिफिकल्टीज वर वेटिंग फॉर हिम. ठीक है ना, वहाँ पर कुछ मजीद जो डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स थी और जो बैड बिहेवियर्स थे वो उसका ऑलरेडी वेट कर रहा था. मिस्टर मर्डस्टोन इंट्रोड्यूस मिस्टर क्यूनियन next day on the after the breakfast that he is my friend, he has got a very nice wine trading company and he is manager over there, he is my friend, and I want you to go with Mr. Quinion to London and start your own job. David was asked to start a job. Okay, by Mr. Murdstone. He forced him to go over there in Murdstone and Grimpeace and start job over there. And he also said that I am not able to mm, I am not able to you may say मैं उसका खर्चा उठाने की सलाहियत में नहीं हूँ. I am not able and I am not able to give you more money and I am not capable of um, स्पेंडिंग मनी ऑन योर एजुकेशन. ठीक है, मैं तुम्हारी पढ़ाई पर एजुकेशन पे ज़्यादा खर्चा करने के काबिल नहीं हूँ. आई हैव नो एक्स्ट्रा मनी टू गिव यू एंड यू हैव टू डू अ जॉब. You should go and be responsible for your own life as he has already done, as he has already started, and you should go there. He will be helping you, Mr. Quinning will be helping you, and you have to go and see yourself in the world. Okay, where do you stand, कि तुम कहाँ stand करते हो, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखो. You should be responsible for your own life and for your own self. You have to earn your own money. ठीक है, I am not giving you much more benefits from now. ठीक है, then Murdstone and Grimby's, when he went over there, it was a strange old building. It had a rotting floor and stairs. It was nearby the river. ठीक है, तो वहाँ का जो atmosphere था river से related, salty and very sticky type का weather, तो the building was getting very old और उसके paint, उसकी जो प्लास्टर यूनिट से उसकी फ्लोर्स, उसकी स्टेयर्स, दे वर वेरी रॉटिंग. ठीक है, बहुत ज़्यादा टूटी फूटी और बदहाल बिल्डिंग थी वो. एंड इट वाज आल्सो ओल्ड, तो उसको देखकर बहुत ज़्यादा कुछ खंडर टाइप की वो बिल्डिंग थी. द जॉब वाज टू एग्जामिन द बॉटल्स. डेविड्स जॉब क्या थी कि ही हैड टू एग्जामिन द एम्प्टी बॉटल्स ऑफ वाइन्स. ओके, उनको रिसाइकल करना, उनको होल्डिंग देम अप इनटू द लाइट, and the faulted bottles will be discarded, and all those bottle without having any flaw, without having any fault, unko wash karna, then fill them with the wine, put corks on them, pack them and dispatch. ठीक है, तो ये सारी जॉब जो थी ये डेविड की थी. एंड विद डेविड, अदर देन डेविड, some more boys, 5 to 6 boys were also over there who was doing the same job. And the boys, they were very needy, that's why they are doing very cheap job. His starting salary was 6 shillings. Okay, and he had become hopeless. ठीक है, he was ashamed of himself that why I'm doing this very cheap job. बहुत ही घटिया और कम पैसों में जॉब करना. उसकी होप सारी डिस्ट्रॉयड हो गई थी. He was not able to dream much more, and his hopes and dreams were totally destroyed. ठीक है, बट इन योर बुक देयर इज अ वर्ड होप्स. जो उसकी उम्मीदें थी अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, ऑफ अ रिस्पेक्टेबल एंड जेंटलमैन बनने की, वो द होप्स हैव बिकम डिस्ट्रॉयड. ठीक है, अच्छा, then he met with Mr. Micawber. Mr. Micawber was one of the worker of Mr. Quinion who used to work in Murdstone and Grimby's. Okay, he met with Mr. Micawber. David met with Mr. Micawber. Mrs. Micawber also in the house. Okay, उनकी पूरी family थी माशाल्लाह से, 4 या 5 उनके kids थे. And Mrs. Micawber told about Mr. Micawber's liability, that he owes a lot of money from different people and he is not able to pay. ठीक है, and then after some time when people forced him and he was not able to pay the liability, so
he was arrested. Mr. Micawber was arrested and put in the prison. Then David uh, was very disheartened and he was very much afraid, and um, he becomes alone, that he is not able to do anything for them. Then Mr. Micawber goes to prison also, okay, because he had owed so much money from the different people, said that he was arrested. Then he also borrowed some money from David, as David was also very needy. ओके, उसके पास भी पैसे नहीं होते थे, तो उसने एक दो शिलिंग उनसे उससे बोरो किए. मिसेस मिकॉबर ऑल्सो शोड हर सेल्फ एज अ वेरी फेथफुल वाइफ. ठीक है, बिकॉज वट एवर मिस्टर मिकॉबर विल डू वेयर एवर ही विल गो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद हिम. देन the Micawbers go to Plymouth. Okay, Mr. Micawber और उनकी पूरी फैमिली then वो फ्री हो जाते हैं in the 6 weeks. He become freed because it was a genuine reason of Mr. Micawber that he is not paying um, the liability. ठीक है, वो liability क्यों नहीं पे कर पा रहे थे? Because he was not able to earn enough money for his own family. जाहिर है जब भी तो उन्होंने कर्जा लिया था, because he was not having enough money. That's why he owed so much money from the different people. And how would he will be able to pay them back, as he is not have, he hasn't changed his job. उन्होंने अपनी जॉब चेंज की ना, उन्होंने अपना लाइफस्टाइल चेंज किया, ऑब्वियसली फिर बच्चे भी थे, तो it becomes very difficult for him to pay that money off. Then David's life become lonely and hopeless. Okay, because the Micawbers had gone to Plymouth on the suggestion of Mrs. Micawber's family. जो उनकी Mrs. Micawber's की जो family थी, उनके parents थे, उन्होंने decide किया कि you both and your family should go to Plymouth. You will be having a very good opportunity of new and um, different jobs from here, so you will be able to earn more money and there will be something to turn up. ठीक है, कुछ ऐसे कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे जिससे तुम्हारे हालात बेहतर हो जाएंगे. Then Mr. Micawber, before leaving, he also gave a very valuable advice to David कि your salary must be greater than your expenses. अपने expenses को कम रखेंगे salary से, सैलरी ज़्यादा होगी और एक्सपेंसेस कम होंगे, तो इट विल बी अ सक्सेसफुल लाइफ फॉर योर्स. बट वाइस वर्सा अगर होगा, मीन्स सैलरी कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, तो इट विल बी ruined, your life will be ruined, you will not be able to cope up with that problems. Then when they all went over there at Plymouth, then David again become very alone. Okay, he becomes lonely and hopeless also, and he decided, he waited for 2-3 days also till the weekend, and then on Saturday he decided to run away from there. He left the job, he left London, and he just started a journey towards Miss Auntie Betsy to meet with her and to take refuge with her. Now we are going to start lesson number 4, Auntie Betsy. ठीक है. First chapter is I find my way to Dover. David found Salem House to take rest. Obviously he was leaving and he had to walk. ठीक है, before towards Dover he had to walk as he was not able to um, he was not able to hire any bus, okay, or any transportation facility because he was not having enough money. He wasn't having any type of facility with him at that time. During the journey he was not having water, enough eatable items, okay, food भी नहीं था, खाना पीना भी नहीं था. Then he had also only one dress which he was wearing at that time. उसके पास extra कोई dress भी नहीं था. ठीक है, तो he was very upset and he was very alone, he was hopeless at that time, and he decided to go over there. Just वो बस उसने वैसे ही प्लान किया और सैटरडे तक वेट किया, and then he started towards Dover. Then he found Salem House to take rest. Okay, क्योंकि वो by walk जा रहा था, तो he had to rest anywhere gradually. हर थोड़ी थोड़ी देर से, हर थोड़े 2-3 घंटे की वॉक के बाद उसको अपने लिए रेस्ट चाहिए होता है. तो he was resting with the outer wall of Salem House. ठीक है, वो वहाँ रेस्ट करता है. And he was feeling very comfortable over there as nobody knows inside the Salem house कि David was outside. किसी को नहीं पता कि David outside बैठा हुआ है, but he was feeling comfortable कि it is not very unknown place for me, it is a known area for him. ठीक है ना, वो उसका जाना पहचाना एरिया था, जानी पहचानी बिल्डिंग थी, तो he was feeling
कुछ अपनायत सी फील, अफेक्टिव उसको यूज लग रहा था, अफेक्शन सी महसूस हो रही थी उस वॉल से। वो टेक लगाकर रेस्ट करने लगा। He reached over after 6 days walking, means he hasn't got any transportation facility and he hadn't got any money to spend on his transportation or any conveyance. So he reached by walk. वो चलता हुआ, पैदल चलता हुआ ही 6 दिन के वॉक के बाद वो डोवर वहां पहुंचता है। डेविड वॉज थॉट टू बी अ बैगर, एवरीबडी ओवर देयर डिडंट नो अबाउट डेविड, ओके, उसको कोई नहीं जानता वहां पर। तो एवरीबडी वॉज थिंकिंग दैट ही इज अ बैगर, ही इज कमिंग हेयर टू फॉर बेगिंग, ठीक है, वो कुछ मांगने के लिए, भीख मांगने के लिए आया है। तो एवरीबडी वॉज उसको सब झिड़क रहे थे, ठीक है, एवरीबडी वॉज स्कॉल्डिंग हिम दैट गो फ्रॉम हियर, वी आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग, डोंट स्टैंड। इवन व्हेन वी गो फॉर शॉपिंग, तो कोई भी दुकान पे जब हम जाते हैं किसी शॉप पर, तो हम जब बाय कर रहे होते हैं कोई भी चीज, तो व्हेन बेगर कम ओवर देयर, तो शॉपकीपर्स क्या होते हैं कि कहते हैं डोंट डिस्टर्ब आवर कस्टमर्स, प्लीज गो फ्रॉम ओवर, गो फ्रॉम हेयर, तो हमारे कस्टमर को डिस्टर्ब नहीं करो। कुछ बेगर्स होते हैं वो हाथ लगाकर हमें हमसे भीख मांग रहे होते हैं, तो हम डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, हमारा जो माइंड है इट आर कंसंट्रेशन डाइवर्ट्स, ठीक है ना। ऑब्वियस जब हमें कोई टच करेगा, कोई छेड़ेगा, तो हम जो खरीदने के लिए आए हैं कुछ चीज़ें भूल जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वी विल नॉट गो एट द सेम शॉप अगेन। तो शॉपकीपर्स क्या करते हैं, उसको भगाने लगते हैं, उन भिखारियों को ना भगा देते हैं कि भाई वाई यू आर डिस्टर्बिंग आवर कस्टमर्स, वो इरिटेट हो रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, मुंह बना रहे हैं, ठीक है। और किसी के भी टच आजकल बिकॉज ऑफ वायरस, तो हम चीजें पसंद नहीं करते। तो सेम हैपेंड ओवर देयर, दैट डेविड वाज थॉट टू बी अ बेगर एंड एवरीबॉडी, एवरी शॉपकीपर वाज गिविंग, वाज जस्ट स्कोल्डिंग हिम, ठीक है, गो फ्रॉम हेयर, गो देयर, डोंट स्टैंड ओवर हेयर, डोंट डिस्टर्ब अस। इवन दे वर नॉट लिसनिंग टू हिम, कि वो बेगिंग करने थोड़ी आया था, वो तो ही वाज जस्ट आस्किंग द एड्रेस ऑफ मिस आंटी बेट्स, ठीक है, वो तो सिर्फ ये पूछने आया था कि आंटी बेट्स को कोई जानता है, आई एम हर नेफ्यू, तो कोई मुझे उनसे मिला दे, वॉट एवर। ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर मनी, ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर फूड, बट इवन ही वॉज थर्स्टी एंड हंग्री, ओके। उसका फेस, उसके कपड़े इतने ज्यादा डस्टी थे एंड ही वॉज फुल ऑफ डस्ट, ठीक है। ही वॉज नॉट रिकग्नाइजेबल, उसको कोई पहचानने के काबिल भी नहीं था वो, उसका फेस, उसके हेयर, उसकी हैट, उसके कोट, उसके पैंट, एवरीथिंग वॉज totally dusted, ठीक है। तो everybody was scolding him. Then he found a servant, okay, a young girl who was a servant of Miss Trotwood. So she told David, when David was asking to the shopkeeper, then Janet, who is the servant of Auntie Betsy, she told David that I know why do you want to meet. Then उसकी बात से और उसके फेस से और जेनेट जिस तरह उसको देख रही होती है डेविड को कि व्हाई डू यू वांट टू मीट और वॉट एवर शी वॉज आस्किंग, तो उससे डेविड को आइडिया हो जाता है दैट शी नोज आंटी बेट्सीज हाउस। तो वो उससे प्लीज कहता है, मिन्नत कहता है, रिक्वेस्ट करता है। देन जेनेट सेड दैट इफ यू वांट टू मीट विद आंटी बेट्सी यू शुड फॉलो मी। तो वो उसको फिर फॉलो कर, अपना पीछा करवा के उसके साथ जाती है। वो आगे आगे जाती रहती है, उससे पीछे डेविड उसको फॉलो करता रहता है। तो दे बोथ रीच टू द आंटी बेट्सीज हाउस। नाउ व्हाट हैपेंड, हाउ डिड डेविड मीट विद आंटी बेट्सी? आंटी बेट्सी डिड नॉट recognize डेविड ऑब्वियसली व्हेन शी केम आउट ऑफ द हाउस। उनका एक गार्डन था छोटा सा, व्हेन शी वाज स्टैंडिंग ओवर देयर शी सॉ डेविड एंड बट शी डिडंट recognize, ठीक है, वो उसको पहचानती नहीं है बिकॉज ऑब्वियसली ही वाज फुल ऑफ डस्ट, ठीक है ना। तो व्हेन आवर फेस वाज नॉट वॉश्ड for 6 days, ठीक है, we have been walking for 6 days overnight for the whole day, ठीक है, and we are not having rest, we are not having water and food enough, ठीक है। ज़ाहिर है चलने फिरने, धूप को बर्दाश्त करना, गर्मी को और थकन को अपनी टॉलरेट करना, इट नीड्स फूड, ठीक है, हमें एनर्जी चाहिए होती। तो डेविड वॉज नॉट हैविंग एनर्जी, बट ही वॉज ओनली जस्ट लूजिंग हिज एनर्जी, वो अपनी एनर्जी को लूज किए जा रहा था, उसको गेन नहीं कर पा रहा था, उसको ओवरकम नहीं कर पा रहा था। तो ही वॉज लुकिंग वेरी वीक एंड सैडी एंड वेरी डस्टी। तो आंटी बेट्सी डिडंट recognize him. Then Auntie Betsy discovered, asked, then when he told that I'm your nephew, David, and then वो उसको जब अच्छी तरीके से देखती हैं गौर से, then she realized that he is David, एंड फिर वो उसको प्यार करती हैं। देन उसको घर के अंदर लेकर जाती हैं। दे स्टार्टेड क्राइंग ऑल्सो बोथ ऑफ देम। एंड देन व्हेन दे
गो इनसाइड द हाउस। तो देन फिर वो क्या करती हैं, उसको जेनेट को कॉल करती हैं दैट एंड बोरो अ ड्रेस फ्रॉम द नेबरहुड आल्सो, इंस्ट्रक्ट जेनेट दैट हीट सम वाटर टू गिव बाथ टू हिम। फिर वो उसको नहलाने के लिए ऊपर भेजती हैं, वो नहाकर साफ सुथरा होकर जब वो बाहर आता है देन दे फिर वो आकर खा पी कर कुछ थोड़ा सा सो जाता है। देन अगेन ही वोक अप, और फिर वो जब टेबल पर खाने की टेबल पे डिनर पे बैठते हैं तो नोबडी वाज ओवर देयर, ओनली आंटी बेट्सी, जेनेट एंड डेविड वाज ओवर देयर। तो देन शी डिडंट आस्क डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली शी आस्क्ड सो मेनी क्वेश्चन, देन शी डिस्कवर्ड दैट व्हाट हैड हैपेंड विद डेविड, कि उसके साथ क्या क्या हुआ, उसकी मदर ने दूसरी शादी कर ली। देन फिर वो जो क्रूअल मैन था मिस्टर मर्डस्टोन, ही टॉर्चर्ड हिम अ लॉट, मारना पीटना, देन सेलेम हाउस भेज दिया, फिर वहां से वो भागा बिकॉज ऑफ हर मदर डेथ, यहाँ आया, फिर पेगोटी के साथ चला गया या मोर, देन अगेन ही केम टू हिज ओन अनफ्रेंडली होम, फिर वहां पर उसने उसको जॉब के लिए भेज दिया। सो then Auntie Betsy realized that what had so many things had happened with David, और बहुत ज़्यादा जुल्म उसके साथ हुआ है because he was not able to earn for himself, वो अपना खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के काबिल उस वक्त नहीं था जब उसको इस काम के लिए छोड़ दिया गया। Then she called, not called, she wrote a letter to Mr. and Miss Murdstone at the address of David. Then they both came to take David back to Auntie Betsy's house. वहाँ पर आते हैं and Mr. Murdstone told so many things wrong and discussed so many things in a bad way and disclosed so many false things to Auntie Betsy that I was taking care of him very good, but he is ungratitude. His attitude was very ungrateful. ठीक है, वो बहुत नाशुक्रा है, उसने मेरा कभी ख्याल नहीं किया, मेरी मतलब whatever we have done for him, he hadn't thanks for us। ठीक है, हमारा कभी भी थैंकफुल नहीं हुआ, वो शुक्र नहीं किया, उसने शुक्रिया अदा नहीं किया। अनग्रेटिट्यूड या अनग्रेटफुल मीन्स उसने कभी भी इस चीज़ को रियलाइज नहीं किया कि व्हाट वी हैव डन फॉर हिम, जबकि उन्होंने उसके लिए कुछ भी नहीं किया, उसको सिर्फ टॉर्चर किया, टेंशन दिया। ओके, तो उन्होंने बहुत सारी गलत बातें भी की। तो आंटी बेट्सी ऑब्वियसली शी नोज अबाउट डेविड, तो शी डिसाइडेड टू कीप डेविड विद हर, उन्होंने मना कर दिया कि यू आर नॉट एबल टू टेक डेविड। एंड मिस्टर मर्डस्टोन आल्सो सेड दैट इफ डेविड इज नॉट कमिंग विद अस टुडे he will not be able to come home again। ठीक है, बिकॉज ही वॉज नाउ द ओनर ऑफ द हाउस। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या कहा कि अगर डेविड आज हमारे साथ नहीं चलेगा तो फिर वो उस घर में कभी भी एंटर होने के काबिल नहीं रहेगा। तो आंटी बेट्सी ने इस बात को ओके कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया एंड ही डिसाइडेड टू कीप डेविड विद हर सेल्फ। मिस्टर एंड मिस मर्डस्टोन बोथ वॉकड आउट ऑफ द कॉटेज विदाउट डेविड। ओके, जब उन्होंने आंटी बेट्सी से ये बात सुन ली और डेविड ने भी उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो इट मीन्स दे बोथ आर हैविंग दिस टॉपिक, दिस डिसीजन एक्सेप्टेबल। Okay, now at Mr. Wickfield, this is the third chapter of this lesson. Then Auntie Betsy thought to concentrate on David's education. After 2-3 days, जब David की थकान उतर गई and he became normal with Auntie Betsy, they both enjoyed a lot with each other. तो आहिस्ता आहिस्ता Auntie Betsy decided gradually that I should consider and we should consider. We means Auntie Betsy and David should consider to his education, के further education के लिए उसको क्या करना चाहिए, because his education is splitting in 2-3 पार्ट्स। ठीक है ना, कभी सैलमा हाउस में गया, फिर उसके बाद वापस आया, फिर दोबारा जॉब पे गया, फिर वहां से वापस आया, तो हिज लाइफ इज इन पीसेस। तो उस पीसेस को ऑल टुगेदर कनेक्ट करके व्हाई नॉट वी शुड स्टार्ट योर स्प्लिटेड एजुकेशन इन अ सिंगल ट्रैक, हम उसको एजुकेशन को दोबारा स्टार्ट करते हैं। यू शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन योर एजुकेशन के फर्दर अब तुम्हें आगे क्या करना है। देन उसके लिए फिर शी टुक डेविड टू Canterbury. They both were very happy that Dover and Canterbury there is a very big difference or very big distance, ठीक है, between Dover and Canterbury, काफी करीब भी है। तो David also say yes that I will be near to you also, ज़्यादा दूर भी नहीं है ये एरियाज एक दूसरे से। तो it is good to go to Canterbury for education। अच्छा, कैंटरबरी में मिस्टर विकफील्ड से who was the family lawyer of Miss Auntie Betsy, तो she decided कि he is a very nice man, he would help you, and they both discussed that which school should be good for David to start the और टू कनेक्ट द प्रीवियस एजुकेशन विद द न्यू वन। तो उन्होंने मिस्टर विकफील्ड से थोड़ी सी डिस्कशन की, फिर डेविड से मिलवाया
David also met with Agnes, who was the daughter of Mr. Wickfield. She was also um, she became friend of David also. Okay, तो वो आपस में काफी घुल मिल गए. Then they were having a very good relationship as a friend, and Agnes also helped David in his studies, reading, writing. ठीक है, उसको help कराना, उसके पीछे वाली चीज़ों को rewind करना. She helped David a lot. ठीक है. Then David also met with Uriah Heep. He was one of the worker of Mr. Wickfield, who was working in the office of, actually Mr. Wickfield is a lawyer, ठीक है ना. तो Uriah Heep was also a lawyer who was having practice in it, and he was actually जो मिस्टर विकफील्ड का घर था, ऑफिस was also nearby, ठीक है ना, साथ साथ ही उसका ऑफिस भी था. तो मिस्टर विकफील्ड के ऑफिस और उनके घर के साथ साथ ही जो है वो यूरिया हिप भी was also over there. ठीक है. तो that was all the lesson कि वो फिर उससे मिलता है यूरिया हीप से, and he also meet with यूरिया हीप. ठीक है. एंड यूरिया हीप की एक खास क्वालिटी क्या है, दैट ही हैड गॉट अ वेरी वेट हैंड्स. ओके, उसके हाथ ऐसे थे जैसे गीले, cold and wet. ठीक है. वन मोर क्वालिटी ही हैज गॉट विच इज नॉट अ गुड क्वालिटी, वो आपको आगे लेसन में पता चलेगी, बट अप टिल नाउ वी विल बी हैविंग एंड वी विल बी सीइंग दैट यूरिया हिप वाज वन ऑफ द वर्कर एंड ही शोज हिमसेल्फ a humble person. मेरी मदर भी हम्बल है, वी लिव इन अ वेरी हम्बल हाउस एंड आई एम वेरी हम्बल. तो उसका नाम ही हम्बल हीप हो गया. ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द राइटर. तो यूरिया हिप वाज वन ऑफ द पर्सन हु शोड हिमसेल्फ वेरी हम्बल. ठीक है, वो अपने आप को हम्बल शो करता है, बट ही वाज नॉट लाइक दिस. ओके, वो अपने फेस पे एक मास्क रखता है. यू डिडंट नो अबाउट दिस, बट इट इज लाइक दैट. ठीक है. बस हमने आखिर में उसके बारे में क्या पढ़ा है कि ही हैज गॉट अ कोल्ड एंड वेट हैंड व्हेन दे शूक हैंड्स. ठीक है, जब वो डेविड उससे शेक हैंड करता है तो इट लुक्स वेरी, उसके जो हैंड्स थे दे वर लुकिंग वेरी कोल्ड एंड वेट ऑल्सो. और फिर वो अपने हाथों को रगड़ता है एंड ऑल्सो वाइप विद द क्लोथ्स. ठीक है ना, ऐसे हो जाता है. तो दैट वाज ऑल अबाउट लेसन नंबर 4, बेट्सी ट्रॉटवुड. ठीक है, ये हमारा आज का ओवरव्यू लेसन था. इंशाल्लाह ऑन इन द नेक्स्ट वीक और मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक. ठीक है, बिकॉज नेक्स्ट वीक तो शायद आपका लैंग्वेज के लेक्चर्स जाएंगे. तो inshallah, not coming in the next week, we will be having lesson number 5 of your literature. So you will be having it was all about the lesson number 5 is all about Uriah Heep and his mother and what had happened with David and Uriah Heep. ठीक है ना, तो वो हम उसको उस वक्त पढ़ेंगे. अच्छा, now I'm asking some questions. Okay, जिसको भी इसका आंसर आता है तो he or she can reply. ठीक है. अच्छा, I am not going to ask these same questions. अच्छा, who will reply me for this question, that Agnes, ठीक है, who was the daughter of Mr. Wickfield, what did Wickfield called Agnes? उसको वो और क्या कहकर डेविड से इंट्रोड्यूस करवाता है, मुझे ये कौन बताएगा. Which specific name Mr. Wickfield called or say for Agnes when he introduced her with David? वो उसको क्या कहकर इंट्रोडक्शन करवाता है डेविड से? रिप्लाई मी फॉर दैट. ओके. और वेरी गुड अनम, लिटिल सर्वेंट, वेरी नाइस. अच्छा, हु वाज मिस्टर विकफील्ड टू आंटी बेट्सी? आंटी बेट्सी का कनेक्शन क्या था मिस्टर विकफील्ड से? हु वाज ही टू हर? Who? Very nice, Abir Fatma, very good. Little servant. Yes, lawyer, family lawyer थे. Very nice. Anam Zafar is very fast. Okay, that is good. अच्छा,
अच्छा, what was the advice of Auntie Betsy given to David? Very nice, Abir Fatma. Only two are giving me reply. Why? Anam and Abir. Where are the other students? Asya कहाँ हो? Rida Rahim, where are you people? अच्छा, what were the three things or what is the advice given to David by Auntie Betsy? वो उसको क्या advice करती हैं? उसको तीन नेगेटिव चीजों से मना करती हैं वो. What were they? Yes. Who will give me the answer of question number 6, that what were the advices? ठीक, कुछ एक advice थी, but she was saying about three things to David कि ये काम नहीं करना. What were these? Do not be cruel. Very nice, Aisha. Do not be cruel, dishonest, and one thing more. One word is left here. Mean. Very nice, Abir. Never be mean and dishonest and cruel to anybody. If you will follow this advice, you will be very successful in the. Very nice, Aisha. Very good. Very good. Acha. One thing more. Hmm. हाँ. What did Auntie Betsy say to David when she didn't recognize David? जब वो recognize नहीं कर पाती हैं उसको, तो वो क्या कहकर उसको भगाने की कोशिश करती हैं? आंटी बेट्सी क्या कहती हैं डेविड को? वो उसको बेगर तो नहीं समझती है, ठीक है ना. शी डिडंट कॉल हिम बेगर. वो उसको बेगर नहीं कहती है, वो कुछ और कह के उसको धुतकारती हैं. दैट क्या था वो? हु विल रिप्लाई मी फॉर दिस? वो उसको कुछ और कह के भगाने की कोशिश करती है. गो अवे, वी डोंट वांट एनी बॉयज ओवर हियर. वेरी नाइस अनम जफर. वेरी गुड. Very good and very alert and very responsive. Hania Fahim, we don't want any boys here. Very good. Very nice. आप लोग बुक लेकर बैठे मुझे लग रहा है. Very good. If even if you are considering the book, it's okay. It's okay. No problem here. क्योंकि ये reinforcement है, उसको सर्चिंग करना, उसको फाइंड आउट करना, एंड आफ्टर विच आफ्टर विच लाइन्स और विच सिचुएशन के बाद ये वाला आंसर होगा, इसको ढूंढना भी इट्स एन आर्ट. ओके. अच्छा, वी हैव 3 minutes ओनली. वेरी गुड अबीर. वेरी गुड. वेरी नाइस. वेरी नाइस. I am very happy that you people are very responsive and very good. रिदा को आवाज नहीं आ रही. अब तो बेटे लेक्चर खत्म होने वाला है. वाई? अच्छा, one thing more, I want to tell you that tomorrow is your MT1 of literature. ठीक है, तो be careful and read the lesson thoroughly. अच्छी तरीके से उसको देख लीजिएगा and you have to read each and every word. ठीक है, मैं किसी वर्ड के मीनिंग भी पूछ सकती हूँ. I can also ask the RTC कि किसने किससे कहे या किसने कहे और किसको कहे. ठीक है, हाफ करके भी, स्प्लिटेड फॉर्म में भी. ओके. किसी पिक्चर से रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन हो सकता है. और सिचुएशनल भी हो सकता है. ओके. सो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरीथिंग वेरी क्विक, वेरी थॉरली. उसको अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा. 25 क्वेश्चंस, और वो भी एमसीक्यूज की टाइप में बनाना. ठीक है ना. वेरी गुड. वेरी नाइस हानिया. यस. 6 days वॉकिंग. गुड. तो इट्स यू हैव टू रीड वेरी कॉन्सेंट्रेटेड. ठीक है, उसको अच्छी तरीके से कंसंट्रेट करके रीड कीजिएगा अपने लेसन्स को दोनों को. although I have given you a reinforcement lecture on Monday. ठीक है, I have given you and we have discussed all the problem. You people also told me that you are not having any question, you are not having any problem. Still, if you are having problem, you can ask me in the lecture. ठीक है, मैंने कहा था लेक्चर में आप पूछ लीजिएगा in the next class. बट कमेंट में प्लीज ऐसा कोई कमेंट मत दीजिएगा कि आपका क्वेश्चन वो किसी और के लिए आंसर बन जाए. ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स क्वेश्चन इस तरह पूछते हैं कि वो आंसर बता रहे होते हैं. ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा. वो कमेंट्स पढ़कर, अभी किसी ने अगर पेपर सॉल्व नहीं किया है तो वो कमेंट्स पढ़कर अपने पेपर को कर सकता है. ठीक है ना. तो यू शुड बी वेरी केयरफुल. वेरी कीनली यू हैव टू रीड द लेसन्स. ओके, 2 and 3 दोनों को अच्छे से रीड कीजिएगा और बहुत कंसंट्रेशन के साथ रीड कीजिए. चीज़ों को याद रखने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है.
सो दिस इज माई एडवाइस टू यू, जैसे आंटी बेट्सी एडवाइस करती है ना डेविड को, दैट्स इन द सेम वे सिमिलरली आई एम गिविंग यू सम एडवाइस कि रीड द लेसन थॉरली, उसको अच्छी तरीके से रीड कीजिएगा। और क्योंकि मैंने ओवरव्यू भी दिया हुआ है लेसन नंबर जी का, तो इस वीडियो को ना थोड़ा सा स्टार्टिंग का जो 5, 10, 15 मिनट्स जो मैंने ओवरव्यू ऑफ लेसन नंबर 3 दिया है, उसको भी ज़रा अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो till then tomorrow it will be uploaded at 8 o'clock में भी। ठीक है, आपके जैसे नॉर्मली एमटीज अपलोड होते हैं सुबह में ऑल टीचर्स कर रही होती है, वैसे ये भी हो जाएगा। एंड we will meet inshallah in the next Monday with language classes. ठीक है, thank you Asiya. David went to contribute for further education, very nice, very good, right answer. ठीक है, so we will be inshallah meeting in the next week with language classes. Okay Aisha, Allah Hafiz, thank you so much all the students. Rida Rahim, right answer. ठीक है, okay जी, Allah Hafiz and take care of yourself and best of luck for your MT. Allah Hafiz.